Siddharth is not available. And then after that, नियति का क्या है? कपिल आप एक बार और देखिए। बच्चे को पहले ही बता दिया कि 15 मिनट पहले भाई आज के डेट है 5 हो रही है। तो नियति से बात हुई आपकी? ठीक, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। लाल वाला है। Siddha, have you joined it? Siddha, are you there in the class? Yes, sir. So good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. So, without wasting time, it's my sincere request to all of you that please be on the session. In fact, please always available the session time. If the time is 5, then you should be here by 5 at any cost. You should not get delayed by that particular time. हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट आपके लिए भी कीमती होना चाहिए। अब एक दो स्टूडेंट्स ने आना है, लेट अस सी। इन द मीनवाइल आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। Aditi, are you listening me? Yes, sir. Okay. So in today's session, we are now, without wasting time, मैं session start करने जा रहा हूँ। In today's session, we'll be starting one of the most prominent topic of chemistry, which is named as metal and non-metal. The moment we will be able to cover this topic, the 30 to 35% of your chemistry at your tips. The entire heart of the 10th class chemistry actually lies in metal and non-metal, followed by the carbons compound. ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें पूरी केमिस्ट्री एनवेलप हो जाती है, कहने का मेरा मतलब ये है। और ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो आपकी, अगर आप आगे साइंस लेंगे तो साइंस के अंदर आपका जो बेस है वो ये दो चैप्टर्स हैं। So in today's session we'll be starting after chemical reaction and its types, metal and non-metal. How many of you have already started with this topic in their respective schools? किसी ने क्या स्टार्ट हुआ? प्लीज ऐसे सामने मेरे दिखिए, इससे मुझे फील आता है कि आप मेरे सामने ही बैठे हैं। किसी के यहाँ स्कूल में स्टार्ट हुआ टॉपिक? No, sir. ठीक है, नाइस, बहुत अच्छा समय, हम इसे बहुत ढंग से कर पाएंगे। See, what is the overview as far as this topic is concerned? As the chapter name itself, metal and non-metal, it means that we are straight away concerned with the physical and chemical property of metals and non-metals. Then followed by, there are certain most important metals at the industrial level. So those important metals are available in terms of their respective ores. Ores are actually regarded to be the compounds. So at the industrial level, these prominent metals which are very, very useful, right, like iron,
like aluminium, right? So apart from that, there are copper, zinc, so many other elements which are very, very useful to humankind, right? For the commercial purpose, for the industrial purpose, as at the same time at the domestic level, are generally not available in their respective free states. They always are available in their compound states. So if I am interested to extract a particular metal out of a given compound, so I need to execute certain important processes, and those processes which helps me to extract the desired metal out of the given compound known as metallurgy or metallurgical processes. तो सबसे पहले हम मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर, जो हम उनके फ्री स्टेट में नहीं मिलते, वो कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं। तो उनकी कंपाउंड स्टेट में से जो अनडिजायर्ड एलिमेंट है उसे निकालकर डिजायर्ड एलिमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, स्टेप्स होती हैं, जिन्हें हम मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। और ये इस चैप्टर का बहुत ही बड़ा हिस्सा है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल के साथ है। जैसे ये मेटलर्जिकल प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद फाइनल स्टेज आ जाएगी कोरोजन के बारे में, और एलॉयज किसे कहते हैं, और एलॉयज सर्टेन इंपॉर्टेंट एलॉयज कौन कौन से हैं और उनके साइलेंट फीचर्स क्या है, तब जाकर ये चैप्टर खत्म होगा। तो एज द चैप्टर नेम इटसेल्फ मेटल एंड नॉन मेटल, सो आई एम स्ट्रेट अवे कंसर्न विद द नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। भाई मेटल एंड नॉन मेटल दोनों अपने आप में एलिमेंट्स होते हैं, चूंकि हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा सीधा ध्यान होना चाहिए कि भाई इन मेटल और नॉन मेटल की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी डीएनए की प्रॉपर्टी क्या है। कहने का मतलब है आई एम कंसर्न्ड अबाउट, बहुत ध्यान से सेशन को सुनो, कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल टू इन टर्म्स ऑफ द नोट्स। मैंने आपको पहले ही कल बता दिया था, आपको सिर्फ समझना है, और जब मैं रुकूंगा आपसे कहूंगा नाउ आस्क मी थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, मैं उसका आंसर दूंगा। पहले मुझे समझिए और सुनिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इफ आई एम कंसर्न्ड अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल नेचर, दैट मींस आई एम इनडायरेक्टली सेइंग दैट आई एम कंसर्न्ड अबाउट द एटॉमिक नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आई एम कंसर्न्ड अबाउट द नेचर ऑफ एटम रिलेटेड टू मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। हमने 9th में पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे, हो सकता है 7th 8th में भी पढ़ा कि मेटल्स आर मालिएबल, डक्टाइल इन नेचर, राइट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एक्सेट्रा। इसी तरीके से नॉन मेटल की भी हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, लेकिन 10th में हम मेटल और नॉन मेटल की टेक्निकल डेफिनेशन देंगे। और टेक्निकल डेफिनेशन मैं स्टार्ट करता हूं पहले मेटल से। व्हाट डू यू मीन बाय मेटल? पहले बात उठती है कि भाई टेक्निकली बताओ, ये वाइवा में भी पूछा जाता है 10th क्लास के, और ये पूछा जाता है कि भाई मेटल किसे कहते हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं भाई मेटल्स आर मालिएबल एंड डक्टाइल। नहीं, हमें टेक्निकल, हमें इसकी रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स आर एलिमेंट्स, मेटल्स आर एलिमेंट्स हुज एटम हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स कौन है? मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकें। एंड मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस टाइप में बड़ी ढंग से मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर बेसिकली द एजेंट्स दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन किसी को चाहिए तो कोई डोनर भी तो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को देने वाला। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, और जो डोनर होते हैं यानी कि वो रिडक्शन की प्रोसेस में मदद करते हैं। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की प्रोसेस में मदद करते हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि वो रिडक्शन की प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले बात ये उठती है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स? लिखो, मेटल्स आर एलिमेंट्स। राइट इट डाउन फास्ट। अभी मैं अपनी स्पीड इस चैप्टर की थोड़ा स्लो रखूंगा, फिर उसके बाद हम तेज कर देंगे। मेटल्स आर एलिमेंट्स whose atom have strong tendency to lose electrons, whose atom have strong tendency to lose or release electrons,
lose or release electrons. Metals are electron donors. Metals are electron donors. कहने का मतलब है इनके एटम्स की बात कर रहा हूं मैं. And metals are reducing agent as well. प्लीज सभी यहां देखिएगा. कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स जो हैं, ये नोट्स मेरी पिछली क्लास के हैं, ये भी अपलोड कर दूंगा मैं जब हम वीडियो अपलोड करेंगे, और उसके साथ साथ जो आज के सेशंस के हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, जैसे बहुत सारे हैं. राइट. तो ये मैंने क्या लिया है, दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच बेसिकली बिलोंग्स टू द मेटालिक सीरीज. अब सोडियम अपने आप में एक मेटल है, और मैंने क्या कहा आपको कि मेटल्स आर एलिमेंट्स हुज एटम हैव अ स्ट्रांग टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है. एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ये चैप्टर तब ज्यादा ढंग से समझ में आएगा जब 9th क्लास का एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको लॉजिकली क्लियर होगा. अगर किसी को लॉजिकली क्लियर नहीं है, मुझे व्हाट्सएप कर देना. मैं 9th का जब भी ये सेशन लूंगा या मेरी पुरानी जो वीडियो क्लास है उसके थ्रू आप मैंने डिटेल में 6 से 7 सेशंस में मैंने एटम एंड मॉलिक्यूल्स को खत्म किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी. जब उसे अटेंड करोगे तो बारीकी से बात समझ आएगी. लेकिन फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको चीजें आती हैं. तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, और हम जानते हैं कि व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स. मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि देयर आर 36,000 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मोर देन 6 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अवेलेबल टू अस. कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, राइट, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, CCl4 हो गया, अल्कोहल हो गया, इतने सारे कंपाउंड्स हैं. ये बनते क्यों हैं भाई? क्या रीजन है? सोडियम क्लोराइड है, नमक है जो हम खाने में डालते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl. अभी क्यों बनता है, कैसे बन गया, क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट, हम नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जब हम जाएंगे तो हम एलिमेंट्स के मेटल नॉन मेटल के अलावा भी और टाइप्स देखेंगे. जहां तक इसका सवाल है कि मेटल्स आर बेसिकली, अगर हम इनकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मेटल का करें तो हमें 281 जो हमें मिल रहा है, या पोटेशियम की बात करें या मैग्नीशियम की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम पाएंगे कि इनके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन होता है. अब वैसे मैं आपको बता रहा था कि कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों की जाती है, क्योंकि एवरी एलिमेंट वुड लाइक टू अटेन स्टेबिलिटी. कहने का मतलब है, बट अंडरस्टूड है that the atom of every element would like to attain stability, and stability, right, always configures the inert gas electronic configuration. right, why do atom combine? ये 9th में पढ़ा था हमने भाई, एटम कंबाइन करके कंपाउंड क्यों बनाते हैं, मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं. ये मैं मानता हूं कि कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है. राइट, कंपाउंड क्यों बनता है भाई, मॉलिक्यूल क्यों बनता है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज the elements of the, in fact the atoms of the same element or atoms of the different element would like to attain stability by acquiring inert gas electronic configuration or by acquiring octet state in the outermost shell, right, or the duplet in the case of hydrogen and helium. ड्यूप्लेट केस मतलब वैलेंस शेल के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम, यही दो एलिमेंट हैं जिनके वैलेंस शेल में ये चाहते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, हम स्टेबल हो जाए. इसी तरीके से जो और नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो, जो मैं ऑलरेडी आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, थोड़ा ओवरव्यू दे दिया था मैंने आपको 9th क्लास का. So why do atom combine? Because the atom would like to attain stability. जहां तक सोडियम का सवाल है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 कहता है, तो सोडियम स्टेबल कब होगा? जब ये अपना एक्सेसिव 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा. तो इसका खोना हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है. सोडियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लॉस को? दिस इज Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. यहां मैंने पॉजिटिव लिखा है, राइट.
यानी कि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया, ये है 28, और जो खोया हमने इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया। पॉजिटिव क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम? The neutrality of an atom actually provides us the information that the number of protons in the nucleus is equal to the number of electrons in the various orbits, right? न्यूट्रल एटम वो होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड होता है। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है। अब सोडियम ने क्या किया, 281 आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, इस एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया, और खोने के बाद अब उसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए 8, लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में 11 हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट्स ओवर द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव ज्यादा हो गया, नेगेटिव कम हो गया, तो डोमिनेंसी पूरे एटम की, राइट? पूरी कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो गई। अब वो एटम एक्टिव हो गया। एक्टिव मतलब इज नाउ अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, नाउ अवेलेबल टू इंटरेक्ट विद द अदर एलिमेंट, द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट। अभी अवेलेबल है, अभी रिएक्शन के लिए तैयार है, राइट? इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को खोते ही ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और हम कह सकते हैं कि नाउ द एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयन। एन आयन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज स्टेट ऑफ एन एटम इज नोन एज आयन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन इज नोन एज कैटायन। इसे हम कैटायन कहते हैं। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द सोडियम। अब पोटेशियम की बात करते हैं। अगर हम पोटेशियम को लेते हैं तो 2881 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक नंबर इसका होता है 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये होता है। अगर इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हम K पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यहां जो मैं लिख रहा हूं ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो राइट साइड में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, राइट? तो यहां पर एक और कैटायन बन गया। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करिए कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन कैसे खोया, ये रिप्रेजेंट करिए पोटेशियम ने कैसे खोया। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। अगर मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन खोएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खोएगा वो, क्यों? क्योंकि वुड अटेन स्टेबिलिटी ओनली बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां 2 पॉजिटिव आएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इसी तरीके से हम अगर कैल्शियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर उसका 20 है, 2882, और अगर हम 282 को भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये होगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इसी तरीके से अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है एज फार एज द बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न। एटॉमिक नंबर 13 होता है इसका, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो इसका 283 है, जो बेटा जी जाके बनता है Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो आई होप दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स हैं अपने आप में जो आपको यहाँ पर प्रोसेस ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स बाय द गिवन एटम्स, राइट? एंड ऑल दीज एटम्स एक्चुअली बिलोंग्स टू द मेटल। ये सभी के सभी मेटल से बिलोंग करते हैं। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल। क्या ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? Excuse me, sir. कुछ पूछना है इसके अंदर? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो शगुन। सर कोई भी मेटल, यहाँ पे जैसे हम मेटल्स की बात करें तो कोई भी मेटल आयन तब बनेगा जब उसके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई होगा। हाँ, तो सर मतलब ये सही है ना कि जब तक उसके पास कोई है नहीं इलेक्ट्रॉन अपना बिल्कुल सही देने बात के है, लिए, वो तब तक क्यों वो रिलीज यूज करेगा? नहीं करेगा, तब तक वो बिल्कुल वैसे ही सही, रहेगा। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात है। तो आप देख सकते हैं कि these are the certain examples which are actually providing the information that the metals are electron donors. Metals क्या हैं? Electron donors. They are rich with electrons, right? They are enriched with electrons. They can donate their electrons. अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये रिडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो रिडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करे उसे हम क्या कहते हैं? एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और आप देखो मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को खोया और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया, बताया था ना मैंने आपको। और रिड्यूसिंग एजेंट आफ्टर गिविंग देयर इलेक्ट्रॉन्स दे एक्चुअली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये मैंने आपको साइलेंट फीचर अबाउट मेटल के बारे में बताया। कैन आई मूव फर्दर? आगे चलूं? कोई डाउट इसके अंदर?
क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, It's sir. clear. Next is non-metals. Non-metals are what? Non-metals are elements whose atom have a strong tendency to gain electrons. Non-metal वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर नोन एज non-metals. They are electron deficient. इनको अपनी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट स्टेट को अचीव करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है. तो सर्टेन इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो वी आर अवेलेबल फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, राइट. तो इनमें से ये अब मैं यहां पर आपको जो रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. प्लीज सब यहां देखिएगा. फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 27. अब ऑक्टेट के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये फ्लोराइड हो जाएगा, इट बिकम्स F नेगेटिव, राइट. तो ये फ्लोराइड की फॉर्मेशन हुई. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के केस के अंदर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये हो जाएगा ऑक्साइड, O2 नेगेटिव, राइट. क्लोरीन की बात करते हैं 287, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हो जाएगा Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन. दिस इज फ्लोराइड, दिस इज ऑक्साइड, और ये सब एनाइन की फॉर्मेशन हो रही है. दिस इज क्लोराइड. सल्फर है 286, 16 है इसका एटॉमिक नंबर, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये हो जाएगा S2 नेगेटिव. दिस इज सल्फाइड. हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का है 25. नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा N3 नेगेटिव, ये हो गया नाइट्राइड्स. अब ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है इसे मैं और प्रिसाइजली रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रहा हूं, और जो आपके एग्जाम का और बोर्ड एग्जाम का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे इनफैक्ट दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, डिफाइन मेटल एंड नॉन मेटल. तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स हुज एटम, ये अपने आप लिख लेना, नॉन मेटल की मैंने लिखवा दी थी डेफिनेशन. नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स हुज एटम हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. Once they gain electrons, obviously they should be regarded as oxidizing agent because they help in the process of oxidation. Oxidation means their loss of electron. अरे कोई अपने इलेक्ट्रॉन को तब खोएगा ना जब नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा, तो खोने की प्रोसेस में मदद करने वाला नॉन मेटल होता है, इसीलिए नॉन मेटल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. So these are the certain examples that actually provide us the information that they are electron acceptors. Electron acceptors, right? Or at the same time oxidizing agents. They help in the process of oxidation and itself gets reduced. और खुद क्या हो जाते हैं, ये reduced हो जाते हैं, right? और अब ये जो मैंने कहा है, तो आप यहां देखिए, यहां हमने एक इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करके बताई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए हाउ टू राइट इन द केमिकल फॉर्म, इन द केमिकल इक्वेशन फॉर्म, इनफैक्ट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द नॉन मेटल. क्या ये दोनों प्रोसेस आपको समझ आ गई कि कभी भी लॉस लिखना हो, क्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो +1 यहां आएगा और यहां माइनस. यहां देखो सोडियम के केस में +1 मैंने राइट साइड में लिखा, अगर मैं इधर लेके जाऊं से तो -1 हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड में -1 हो गया. तो लॉस हमेशा, लॉस ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी ऑन द राइट साइड एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी ऑन द लेफ्ट साइड. दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल एंड नॉन मेटल रिस्पेक्टिवली. आई होप इतना क्लियर है. सर अगर हम माइनस करके लिखे इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स वाले में तो वो भी सही है. क्या दोबारा बोलो सर जैसे Na -1 E- करके
लिखे अगर, हाँ, जैसे आपने वो भी माइनस सही है, वो भी सही है बिल्कुल। Na-1 लिखना होगा ना आपको वहां, यस तो फिर Na पॉजिटिव लिखेंगे आप, राइट। सो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लिखो क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर and the ion formation of the respective elements, very important, almost confirmed, 99% चांस है। सीरियल नंबर में कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूं। डी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ बेटा जी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर विद देयर, ये ज्यादा प्रिसाइज होगा, विद देयर रेस्पेक्टिव आयन फॉर्मेशन। राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर विद देयर रेस्पेक्टिव ion formation of the following elements. देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने एक तरीके से यहां पर ये कॉलम्स बना दिए, राइट। नंबर 1, अगर हम बात सोडियम की करते हैं, आप देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन खोया ना यहाँ। अब एक इलेक्ट्रॉन खोने को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम, मतलब इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय द सोडियम शुड बी रिप्रेजेंटेड एज Na डॉट एंड आयन फॉर्म शुड बी रिप्रेजेंटेड एज Na पॉजिटिव, जैसे यहां ऊपर करके दिखाया था मैंने। ये देखो Na पॉजिटिव है ना, तो ये आयन फॉर्म है। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, यानी कि एक डॉट का मतलब है सोडियम हैज रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन, राइट। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन खोता है तो 2 डॉट्स आएंगे, आयन फॉर्म क्या होगा? 2 पॉजिटिव, राइट। तीसरा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में हो गया 1 2 एंड 3, तो Al 3 पॉजिटिव, राइट। फोर्थ कैल्शियम, कैल्शियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खोता है तो Ca 2 पॉजिटिव। क्या ये क्लियर है यहां तक एज फार एज द मेटल्स आर कंसर्न, राइट। देन फिफ्थ, अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का आप ध्यान से देखिए, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 7। तो नॉन मेटल के केस के अंदर आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने डॉट्स आपको देने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर फ्लोरीन, राइट। और इसकी आयनिक फॉर्म आप लिखेंगे, ब्रैकेट लेंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तभी तो आयन बना, और वो एक्सेप्टेंस होगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑलरेडी थे इसके। किसी बाहरी एजेंट से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसे मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। दैट क्रॉस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय अदर एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट हैज टू बी ए मेटल, राइट। तो नेगेटिव डाल दिया ऊपर। नेगेटिव क्यों डाला? दैट मींस दिस फ्लोरीन हैज एक्सेप्टेड 1 इलेक्ट्रॉन एंड हेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोराइड, इसे फ्लोराइड कहेंगे। फिर आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन के केस के अंदर भी आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, जो मिला उसे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया मैंने और माइनस लगा दिया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। सातवीं बात करें हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, क्या है ऑक्सीजन का? 2 6, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया ना इसने, 8 होता है इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये ऑक्साइड बन गया 1 2 3 4 5 6, तो दे 2 इसने किसी और से लिए, अब ये 2 नेगेटिव हो गया। और इसी तरीके से 8वां नाइट्रोजन पे चलते हैं हम। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, और 3 इलेक्ट्रॉन उसने अपने किसी एजेंट से ले लिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हर एक में देखिए आप 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
3 लिए इसने 3 नेगेटिव आएगा, राइट। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं सल्फर की, तो सल्फर के पास भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, S2 नेगेटिव। तो दिस इज द वे एक्चुअली टू, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ना 99% यही एलिमेंट्स आएंगे आपको, और आपसे पूछा जाएगा इसका डॉट स्ट्रक्चर और इसकी आयनिक फॉर्म लिखो, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स तक की इसकी वेटेज होती है, and it hardly requires 15 seconds to write the answer of all these things if the concepts are clear. तो यहां तक क्या सभी को क्लियर है? अदिति क्लियर है आपको? Yes, sir. दिव्यांशु? यस सर क्लियर है। वेरी गुड। सिद्धार्थ? यस सर। ग्रेट। बिल्कुल है ना, इसका एक नॉलेज, एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हैं हम, ऐसे पढ़ो। कोई एग्जाम देना इस तरीके की सोच ही मत रखो, देन एक नेचुरल वे में इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इस तरीके से नाउ वी आर वेरी मच क्लियर एज फार एज द टेंडेंसी, यही तो बोला था मैंने, द टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एंड द टेंडेंसी ऑफ द नॉन मेटल्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, with the help of electron transfer scheme, note down questions. With the help of electron transfer scheme, with the help of electron transfer scheme, explain the formation of following compounds. Explain the formation of following compounds. आज की क्लास का सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कंपाउंड? सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इससे बाहर किसी कीमत पर नहीं आएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड तो जनरली पूछा भी नहीं गया आज तक, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर समझ आ गया तो आपके टिप्स पर है टॉपिक। समझ लो इस चैप्टर में से 8 नंबर का पेपर आना है, तो 3 मार्क्स का तो आज की क्लास में खत्म हो गया, और गारंटेड आएगा, पक्का आएगा। 20 साल से आ रहा है, अगले 20 साल आता रहेगा, राइट। तो अब हमें इन सभी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है इसे समझना है, राइट। मैंने आपसे बताया था कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल always be formed by the interaction of, by the combination of atoms of the same element or atoms of the different element. Atoms of the same element, hydrogen H2, chlorine Cl2, oxygen O2, isn't it? And atoms of the different element, sodium combines with chlorine, leads to the formation of sodium chloride. तो ये chemical reaction हुआ या नहीं हुआ? The formation of sodium chloride is an example of chemical reaction. और केमिकल रिएक्शन टॉपिक में मैंने आपको बताया था, केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेसेस which leads to the formation of new substances with new features, right? The substances so formed are known as product, and the substances which combine together are regarded to be the reactants. And chemical process is nothing but it involves the rearrangement of atoms, rearrangement of the atoms of the elements involved in the reactant sites so as to form a new substance, a new compound. And what do you mean by a compound? A compound is a substance chemically combined together. It's basically formed by the atoms which are chemically combined together in a fixed proportion by weight. ये पढ़ा है आपने 9th क्लास के अंदर, राइट। कंपाउंड क्या है? फिक्स प्रोपोर्शन बाय 8। मतलब कहने का H2O है, वाटर है,
तो वाटर की रेशियो है 1:8, चाहे वो इंडिया हो चाहे यूनिवर्स में कहीं भी हो। हाइड्रोजन का एक हिस्सा ऑक्सीजन के 8 हिस्से के साथ रिएक्ट कर कर पानी बनाता है। और जो वाटर जो बनता है इसके एकदम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज। ये खासियत होती है केमिकल रिएक्शन में। सोडियम की अपनी प्रॉपर्टीज है भाई, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, लेकिन दोनों के इंटरेक्शन से बना क्या, एक नया कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। और ये जो सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बना है इसके अपने फिजिकल और केमिकल फीचर हैं जिसका खाली सोडियम या खाली क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ केमिकल प्रोसेस कि जो चीज बनती है वो अपना अस्तित्व अलग रखती है, उसकी एक अपनी अलग पहचान होती है, उसका जिससे बना है उससे कोई लेना देना नहीं होता। और ऐसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस नोन एज, केमिकल रिएक्शन होने के लिए भी तो प्रोसेस चाहिए, एंड द प्रोसेस नोन एज केमिकल बॉन्ड। उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। जब आप as far as the 10th class is concerned, only two kinds of the chemical bond which we are supposed to study. हमें दो तरीके के केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 is electrovalent bond. The next one is covalent bond. In fact, hydrogen bond, resonance, coordinate bonds ऐसे 3 और होते हैं जिनके बारे में 11th क्लास में अगर आप साइंस लोगे तो चैप्टर पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में 1.25 महीने में तो सीबीएसई का खत्म होता है और एंट्रेंस का तो 3.5 से 4 महीने लगते हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को ही कराने के लिए 60 घंटे चाहिए, 60 आवर्स, जिसमें हमारी पूरी 10th खत्म हो जाती है अगर हम आईआईटी एडवांस की बात करते हैं, राइट। इतना एलॉबरेट टॉपिक है। तो इसके अलावा जो 3 और बॉन्ड है वो आपको हमें नहीं करना है इस समय, दिस नॉट द कप ऑफ टी राइट नाउ, ये आपको हायर क्लास में करना है। फिलहाल हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को समझेंगे, लेकिन बात तो ये उठती है कि इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट को तो छोड़ो, केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय द केमिकल बॉन्ड? देखो, सोडियम और क्लोरीन ने रिएक्शन किया, रिएक्शन करके क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम एंड क्लोरीन स्टिक टुगेदर। और स्टिक मतलब there must be a force of attraction that binds that binds sodium with chlorine together permanently, right? and इस बाइंडिंग को, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, की प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट करता है उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स, ध्यान से सुनो, मैं लिखवाऊंगा। केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट बाइंड्स एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल, that binds atoms together in the form of molecule. Did you get the meaning of chemical bond? देखो, Yes, sir. देखो, Yes, chemical sir. bond is defined as, chemical bond is defined as the force. Chemical bond is defined as the force. Chemical bond is defined as the force which binds atom. Defined as a force which binds atom, is basically defined as a force which binds atoms together, in a molecule. Molecule आप जानते हैं, आपने 9th में पढ़ा था, the combination of 2 or more than 2 atoms of the same element or of the different element known as molecule, right? तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? सिंपल सी बात है, केमिकल बॉन्डिंग कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड का मतलब है 2 एलिमेंट जो कि 2 एटम या तो सेम एलिमेंट के होंगे या अलग अलग एलिमेंट के होंगे, एक नई चीज बना देंगे। तो हेंस वी कैन से दैट केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स दैट बाइंड्स एटम्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल। क्या इसका मतलब समझ में आ गया जो मैंने बोला है? बिल्कुल लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। अब केमिकल बॉन्ड में पहली बात आती है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, दूसरी आती है कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट मोर देन 36,000 inorganic compounds, and covalent bond is held responsible to create more than 6 lakhs organic compounds.
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक नई ब्रांच केमिस्ट्री की बना देती है जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड एक अलग केमिस्ट्री की ब्रांच बना देती है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जो स्ट्रक्चरल डिटेल से रिलेटेड होती है एलिमेंट्स के, राइट, उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो जब आप 11th क्लास में आएंगे, 12th में होंगे, तो आप केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम जो ये कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, आगे इसका क्या यूज है, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का रीजन है कि ऐसे ऐसे कंपाउंड जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत काम आते हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए, राइट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है, सारे केमिकल से तो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या आ गई, मेडिसिन आ गई, पॉलीमर्स आ गए, राइट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आ गए, बड़ा जबरदस्त यूज है इसका भी, राइट। 6 लाख से ज्यादा है तो आप समझ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है कि भाई एक पर्टिकुलर कंपाउंड या एलिमेंट की स्ट्रक्चरल डिटेल को बारीकी से समझना, उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब मैं आ रहा हूं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड that is formed by the transfer of electron from one atom to another atom. The process that executes the transfer of electron from one atom to another one is known as electrovalent bond. Transfer of electron, donation of electron. Donation कौन करता है, मेटल। एक्सेप्ट कौन करता है, नॉन मेटल। यानी कि कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऑलवेज एग्जीक्यूट्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को अभी नहीं बता रहा मैं, अभी हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। So the bond which is formed by the transfer of electrons from one atom to another atom is known as electrovalent bond. If you say electrovalent bond is defined as electrovalent bond is defined as the transfer of electron. The bond is defined as the bond that is formed by the transfer of electron, from one atom to another atom. From one atom to another atom. तो ये डेफिनेशन ही आपको एक बात क्लियर नहीं करती कि ट्रांसफर कौन करेगा, जो डोनेट करने की क्षमता रखता होगा, राइट, और गेन कौन करेगा, जो एक्सेप्टर होगा। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन ए मेटल एंड नॉन मेटल। इट्स द बॉन्ड दैट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स बिटवीन द मेटल एटम विद रिस्पेक्ट टू द नॉन मेटल एटम। ये इसका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन metal and non-metal. Right? Now let's understand how does it possible. जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्कीम शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या करेंगे प्लीज, अब 2 मिनट कुछ नहीं लिखेंगे, सबका फोकस यहां होना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे, क्लोरीन के लिए ये लिखेंगे, राइट। जब आप क्लोरीन के लिए ये लिखेंगे, इतना क्लियर है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे रब कर रहा हूं, राइट। तो ये तो आपको क्लियर है कि इस तरीके से हम लिखते हैं कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम सोडियम का क्या है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम क्या है। इसका मैं इलेक्ट्रॉन क्रॉस ले रहा हूं। सोडियम के का ये क्रॉस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम इज रेडी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन।
अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्कीम। ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर हुआ तो इस केस के अंदर ये क्या होगा, Na पॉजिटिव, और ये क्या हुआ, देखो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम और इसे कहते हैं आयन फॉर्म। क्लोराइड का आयन फॉर्म ये होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये देखो यहां पर बता चुका हूं या नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और यहां पर ये क्रॉस लिख दिया मैंने, क्रॉस में ब्लैक में लिख देता हूं, ब्लैक के मतलब ये हो गया कि आपको पता लग गया कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन। इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 28, इसका भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बोथ अचीव देयर रेस्पेक्टिव inert gas electronic configuration and hence combined together leads to formation of sodium chloride. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपने 9th में पढ़ा था आयन फॉर्म करना, तो और मैं इसे लिख सकता हूं सोडियम क्लोराइड, राइट। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। इसमें कोई डाउट? नो सर। नाउ नो सर। सेकंड, आदित्य क्लियर है बेटा तुझे? Yes, sir. पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम क्रॉस, राइट, क्लोराइड 1 2 3 4 5 6 7, right? Now this electron gets transferred over here, it becomes K positive, and this is 1 2 3 4 5 6 7 negative. This electron is denoted by, आप तो चाहे वो एक ही पेन से करना, मैं तो आपको थोड़ा समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। और आई कैन से दिस इज KCl, द फॉर्मेशन ऑफ KCl। नेक्स्ट MgCl2 भी लिख रहा हूं मैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज पोटेशियम क्लोराइड, भी मैंने बता दिया आपको। सोडियम ऑक्साइड, हर्ट, प्लीज यहां फोकस करें। वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 2 सोडियम एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। नहीं, एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम की जरूरत है और 1 ऑक्सीजन की जरूरत है। क्यों जरूरत है अभी क्लियर कर रहा हूं। सोडियम, राइट, के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है, बोथ आर रेडी टू रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 सोडियम की जरूरत है। व्हाट इट विल डू, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। ऐसा होने पर ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव, 2 Na पॉजिटिव बने, और 1 2 3 4 5 6 7 8 negative. Is that clear? So that leads to the formation of what? Yes, sir. Na2O, और हम इसे क्या कह सकते हैं, Na2O। क्या ये आपको क्लियर है? यस सर। If it is clear to you, please go for Yes, magnesium sir. oxide on your own. Don't see at the screen. मैग्नीशियम ऑक्साइड खुद बनाओ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है।
हाँ नियति, आपको सुनाई दे रही है बेटा? नियति, आर यू लिसनिंग माय वॉइस बेटा? प्लीज रेस्पॉन्ड टू मी, आर यू लिसनिंग माय वॉइस और नॉट? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्लियर है? Yes, sir. फाइन। देन सोडियम ऑक्साइड हम कर चुके हैं। पोटेशियम ऑक्साइड बना के दिखाओ खुद से। K2O अपने आप करिएगा। एटॉमिक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पोटेशियम का 2881, एटॉमिक नंबर 19 होता है इसका। यही बना? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड देखो। कैल्शियम 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2882 हुआ। तो कैल्शियम अपने आप में एलिमेंट कैल्शियम क्लोराइड ये है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ वन कैल्शियम एटम एंड टू क्लोरीन एटम्स। So this calcium consists of 2 electrons. If it wants to interact with the chlorine, one chlorine can accept only 1 electron. What about the other electron? Calcium is ready to release its both electron. एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके सेटिस्फाई नहीं है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 2 क्लोरीन एटम होने चाहिए। तो व्हाट हैपेंस, ये इधर की तरफ ट्रांसफर हुआ और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ। And hence Ca2 positive 1 2 3 4 5 6 7 and followed by the cross 2 calcium chloride. Is it clear? Yes, sir. मैग्नीशियम क्लोराइड इज योर होमवर्क, खुद करेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लीज सबका फोकस यही होना चाहिए। This is the chemical formula of aluminum oxide. If you be able to understand its electron transfer scheme, then the topic is in your hand. Aluminum oxide consists of 2 aluminum and 3 oxygen atoms, right? So as to create the aluminum oxide molecule. So aluminum, as we know, consists of 3 electrons ready to release, ready to get released. Obviously another, क्योंकि 2 हैं तो हमें 2 तो बनाने ही होंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम ऑफ द पेयर ऑफ एल्युमिनियम। अब ऑक्सीजन 3 है तो ज्यादा सोचना नहीं, ऑक्सीजन 3 के बना दो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ऑलवेज फॉलो द कॉन्सेप्ट, याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट फॉलो करना। अब यहां पर 3 ऑक्सीजन क्यों लिए गए? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। एक ऑक्सीजन तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है,
So in order to have the acceptance of all these 6 released electron by the pair of aluminum atoms, we do have the requirement of 3 oxygen atoms. So this gets transferred over here. This one also gets transferred over here. इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये भी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट. नाउ दिस वन, इनफैक्ट एक काम करना था मुझे, जस्ट this one goes over here, this one goes over there, right. और ये इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ है, this also. So in that way, pair of aluminum, right, have released their 6 electrons to the 3 existing oxygen atoms, and hence that creates twice of Al3 positive plus thrice of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Two negative, or I can say Al2O3. और अगर हमें इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो आप देख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम ने अगर रिलीज किया तो ट्वाइस ऑफ Al, राइट, 3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक ने 3 इलेक्ट्रॉन तो 2 ने 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए. ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन रिसीव्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स and gets converted into oxide, right. And then finally I can say that, और ये आपस में कंबाइन हुए, that leads to the formation of Al2O3. क्या ये आपको समझ आया? Is it clear to you or not? Yes, sir. Yes, sir. Please Yes, sir, speak to clear. me, क्योंकि बोलोगे नहीं तो फिर फायदा क्या है. यस सर. ऑलवेज फील लाइक कि आप सेशन में बैठे हो, सामने बैठे हो इंस्टीट्यूट के अंदर. हम बेशक ऑनलाइन ले रहे हैं लेकिन ऑफलाइन के एक्सपीरियंस के साथ पढ़ना और पढ़ाना जरूरी है. जब तक इंटरेक्शन नहीं है तो बेकार है लाइव लेना. यू कुड हैव वॉच द वीडियो. इसे ट्राई टू बी राइट एट मोस्ट आउटवर्ड इन नेचर कि आप बात कर सको मुझसे. और मैं चाहूंगा नियति सामने आओ आप भी. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सामने आकर ही बात करनी चाहिए, राइट. तभी हमने जूम प्लेटफॉर्म को लिया है, नहीं तो मैं इससे पहले जूम पे नहीं पढ़ा रहा था, आपको पता ही है. इससे सिंसियरिटी लेवल का भी पता लगता है. आदित्य आप कहाँ हो? नेक्स्ट टाइम याद रखना, अगर मेरी वॉइस का किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं एब्सेंट लगाने वाला हूं उसका. क्लियर है यहां तक बेटा जी? तो इन दैट वे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्कीम से इन सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दिखा सकते हैं. और ये कंफर्म्ड क्वेश्चन है, आपके टिप्स पर होना चाहिए. और आज ही देखा जाए तो हमने कर लिया. मैं अब आपसे ये चाहूंगा रात को सोने से पहले बिना क्लास नोट्स देखे. ओह बेटा ठीक है, नहीं आती, मैं समझ गया बेटा जी. हाँ नेटवर्क इशू आ रहा है. यस यस यस, कोई बात नहीं. हाँ अगर कभी नेटवर्क इशू हो तो चैट करके मुझे जवाब दे दो, राइट. फाइन. तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि जो भी आज आपने समझा है, आज बड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लास थी. आप जैसी क्लास खत्म हो ना तो एक काम करा करो, ठीक 5 मिनट के बाद आंख बंद करके बैठ जाया करो और पूरी क्लास को रिवाइंड करो अपने ब्रेन में. इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स. 5 मिनट या 5 मिनट से कम लगेगा.
पूरी क्लास आप इमेजिन कर लोगे, रिपीट कर लोगे अपने ब्रेन के अंदर, तो वो आपके जो है रैम से रोम में चला जाएगा, रीड एक्सेस मेमोरी से रीड ओनली मेमोरी में चला जाएगा, एक तरीके से हार्ड डिस्क में जाएगा। और अगर रात को सोने से पहले आपने ये जो काम मैंने आज कराया है, अगर मैं इसका होमवर्क कहूं, असाइनमेंट कहूं, तो क्या हुआ असाइनमेंट आज का? पहला क्वेश्चन मेटल एंड नॉन मेटल किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, चौथा क्वेश्चन ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम और आयन फॉर्म वो कैसे क्रिएट करते हैं, और पांचवा क्वेश्चन ये जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंपाउंड्स दिखे हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ये आपको क्लास में अगर आपने अटेंटिवली सुना है तो सोने से पहले सारा काम खुद करो, बिना क्लास नोट्स देखे, और फिर क्लास नोट्स से चेक करो। मान के चलो कि आपने 10 काम, मैंने ये 5 काम कहा है आपको, इन 5 क्वेश्चन में से 4 आपने कर दिया और सही है, वो जिंदगी भर के लिए आपको याद रहेगा, पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए आपको याद रहेगा। जिसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस आती है वो स्मार्ट वर्कर होते हैं, हार्ड वर्कर नहीं होते। हार्ड वर्कर्स तो अबव एवरेज परफॉर्मेंस तक जाते हैं, स्मार्ट वर्कर रोज का काम रोज खत्म करता है, और सबसे बड़ा क्वालिटी उसके अंदर होती है अवेयरनेस, वो अपने काम को लेकर जागरूक रहता है। अवेयरनेस इज द की टू सक्सेस। आप रात को जब सो ना तो बिस्तर पे जाने से पहले आपका मन बोलना चाहिए कि आपने आज का काम किया है नहीं किया, अगर काम नहीं किया तो नींद नहीं आनी चाहिए। ट्राई टू बी योर ओन बॉस। इस तरीके से क्या होगा कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सिलेबस आपके टिप्स पर आ जाएगा, और नवंबर दिसंबर के अंदर हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बोर्ड तो हम कर चुके होंगे, राइट। इसलिए कल पर पोस्टपोन मत करना, इसे आज ही लिख कर देखना, और हो सके तो आज ही मुझे असाइनमेंट के तौर पे भेज देना। मैं ना अब असाइनमेंट की डेडलाइन नहीं डाल रहा, प्रेशर्स करने से ना कोई काम नहीं होता। पढ़ाई लिखाई प्रेशर से नहीं हो सकती, 10th क्लास के बाद नहीं हो सकती, 9th से ही नहीं हो सकती। इनफैक्ट सभी समझदार हो, बड़े हो, कोचिंग ज्वाइन किया है तो किसी पर्पस से करिए। अगर वो पर्पस ही नहीं मालूम तो पता नहीं क्यों ज्वाइन किया, जबरदस्ती बैठे हो तो मैं ऑब्वियसली मना करता हूं, लेकिन टचवुड मेरे पास ऐसा स्टूडेंट एक भी नहीं है। तो आपका पर्पस है तो आप अपने पर्पस के लिए रोज का काम रोज खत्म करो, अपने बॉस बनो, कल तक के काम को मत छोड़ना। मैं आपको बहुत सारे असाइनमेंट देना चाहता हूँ, बहुत सारा काम देना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे आपका फीडबैक पॉजिटिव चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर ओन टास्क। तो असाइनमेंट के अंदर डेडलाइन नहीं होगी, लेकिन असाइनमेंट को सबमिट करना ये मेरा मन जानता है, और आप भी जानते हो, मैंने कहा ये काम आज खत्म होना चाहिए तो आज मिल जाना चाहिए। किसी कारण से नहीं कर पाओ तो भाई कल तो शाम को 6 बजे से पहले तो भेज दो। अरे कल 6 बजे तक भी ना भेज सको तो परसों 1 बजे तक तो भेज दो, और अगर परसों तक भी नहीं भेज पाए तो बेकार ज्वाइन कर रखा है, कुछ फायदा नहीं होगा। पूरा साल पढ़ने के बाद 10% भी एडवांटेज नहीं निकालोगे। सीधी सिंपल सी बात है, ट्राई टू फॉलो मी रिलीजियसली, दैट्स इट। तो पूरा सेशन क्लियर है? कुछ पूछना है आज के इस सेशन से? सर हाँ सर जो कल आपने रियल नंबर्स का क्वेश्चन बैंक भेजा था सर, उसे कॉपी में रजिस्टर में करके आपको पीडीएफ सेंड करना है बिल्कुल या बिल्कुल। उन्हें समझना है? हाँ नहीं पीडीएफ उसकी फोटो खींच के भेज दो ना भाई, मुझे भी तो पता सर रहेगा मतलब ना। कॉपी में फेयर में मतलब लिखकर और उसके बाद फिर पीडीएफ बनाना है? पेयर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई होमवर्क थोड़ना है। तुम्हें क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, चाहे रफली करो, राइट। डोंट राइट द आंसर एज ए होमवर्क। स्कूल में होमवर्क होता है, यहाँ प्रिपरेशन टास्क है। होमवर्क तो कॉपी करके भी दे सकते हैं हम, प्रिपरेशन टास्क का मतलब है जो आप मुझे पीडीएफ भेजते हो ना असाइनमेंट का, वो आपको आता है, मतलब बट अंडरस्टूड है, वो आपको आता है, इसीलिए आपने मुझे भेजा है। मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूं उसमें, राइट। तो हम स्कूल के होमवर्क में और हमारे काम में जमीन आसमान का अंतर है, हम कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आप जरूर पीडीएफ इसलिए भेजो कि उससे मुझे पता लगता रहेगा ना, मैं रजिस्टर तो देख नहीं सकता, आप सामने तो आते नहीं। मानता हूं 5-7 मिनट वेस्ट होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, कल्चर्ड वे में काम होता है, और वो असाइनमेंट्स आपके तैयार भी हो जाते हैं, और आपकी इसकी सॉफ्ट कॉपी भी तैयार होगी, और मुझे पता लगता है सबसे बड़ी बात, और मैं पक्का चेक करता हूँ, एक स्टूडेंट का भी ऐसा नहीं है जो मैं चेक नहीं करता। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ना टिक नहीं कर सकते हम, वो बात अलग है, लेकिन देखता जरूर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मेहनत की है, तो मेरा फर्ज बनता है असाइनमेंट को देखने का।
रूल यही है, लाइव सेशन का अगले लाइव सेशन से पहले होमवर्क हो जाना चाहिए, मतलब असाइनमेंट हो जाना चाहिए और मेरे तक पहुंच जाना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग, राइट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने कल छुट्टी दी थी ईद की। सर हाँ। अभी मम्मा ने बताया कि एक्चुअली कल ईद नहीं है, फ्राइडे को है ईद। तो अच्छा। आप अगर पॉसिबल है तो आप अपने स्टूडेंट्स को मैसेज देके कल आप क्लास रख लो, फ्राइडे को अगर आप ऑफ रख सकते हो तो फिर बहुत हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, तो पक्का ये फ्राइडे को कंफर्म्ड है? यस सर, क्योंकि बिकॉज ईद डिपेंड करती है कि मून कब दिखता है। तो सही बात है, जानता हूँ मैं। आज अरेबिया में मून नहीं दिखा है, तो दैट्स व्हाई आज यहाँ पे मतलब कल यहाँ पे ईद नहीं बहुत अच्छा मनेगी। किया, मैं अभी सबको मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल दूंगा। द ओनली थिंग इज कि मुझे अब डिसीजन ये ले रहा है कि कल पॉलिनोमियल लेना है या मुझे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है, दैट आई डिसाइड। मैं मोस्ट प्रोबेबली इसी को कंटिन्यू करूंगा, ओके सर। राइट, सो दैट कि हम एक अच्छा खासा लेंथ इसका कवर कर लें। अदरवाइज हो सकता है मैं पॉलिनोमियल भी, वो जो भी है रात के 9 बजे तक आप सबको मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मीटिंग नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बेटा जी। थैंक यू सर। नमस्कार। बाय सर। बाय बेटा जी। तो भी यहाँ आएगा डालेगा, ये डालेगा, एमएस डॉट डालेगा, ट्रांसफर हो गया। तो मुझे बताइए, मैं उसको लिख भी दिखा दूंगा, ब्राउज वगैरह का आप उनको आपका एक प्लान है, वो आप लैपटॉप से कर अभी ऐसी क्लास बन रही है यार, कल नहीं है तो फिर है ऐसे। क्या कह रहा है, कब ले रहा कभी देखना। मुझे जल्दी घर छोड़ना चाहिए, है ना, इतना 10 मिनट पहले। हाँ, मैं ऐसा डाल दूँ